میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھیے اپنے رب کے نام سے وہ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم وہ ذات جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم اس نے سکھلایا انسان کو جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ۔ کلا ان الانسان لیطغی یقیناً بلا شبہ انسان البتہ سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنی اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے پرواہ۔ ان الی ربک الرجعی بلا شبہ آپ کے رب ہی کی طرف واپسی ہے۔ ارأیت الذی ینہی بھلا بتلا تو صحیح وہ شخص جو روکتا ہے عبدا اذا صلی ایک بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی بھلا بتلا تو اگر وہ نمازی ہدایت پر، او امر بالتقوی یا وہ حکم دیتا ہو پرہیزگاری کا۔ ارأیت ان کذب وتولی بھلا بتلا تو اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی۔ الم یعلم بان کیا نہیں جانا اس نے یہ کہ بلا شبہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ہرگز نہیں، البتہ اگر نہ رکا وہ تو ضرور گھسیٹیں گے ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر۔ ناصیۃ ذات خاطئہ پیشانی جھوٹی خطا کار۔ فلیدعو نادیہ بس چاہیے کہ وہ بلائے اپنی مجلس کو۔ سندعو الزبانیہ یقیناً ہم بھی بلائیں گے عذاب کے فرشتوں کو۔ کلا لا تطعه واسجد واقترب ہرگز نہیں، نہ اطاعت کریں گے آپ اس کی، اور سجدہ کیجیے اور قرب حاصل کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کے اعتبار سے قرآن کی اولین صورت ہے۔ نبوت کی ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی جب آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ پس جبریل علیہ السلام پیغام الہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کہا کہ آپ پڑھیں، مگر آپ نے عذر پیش کیا اور کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام بار بار یہی بات دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام لے کر پڑھیں جس نے پیدا کیا، یعنی جس نے عام مخلوق کو پیدا کیا۔ پھر انسان کو خاص کر کے اس کی تخلیق کی ابتدا کا ذکر کیا، فرمایا من علق، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پس جس ہستی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی تدبیر کی، لازم ہے کہ وہ امر و نہی کی بھی تدبیر کرے، اور یہ کام وہ رسول بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے سر انجام دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دے کر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، یعنی آپ کا رب بہت زیادہ اور وسیع صفات کا مالک، بہت زیادہ کرم و احسان اور بے پایاں سخاوت والا ہے، جس کا کرم یہ ہے کہ اس نے مختلف انواع کے علوم کے ذریعے تعلیم دی ہے، اور علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، قلم کے ذریعے سے سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں کے پیٹ سے نکالا اور اس وقت کچھ نہیں جانتا تھا، اس کو سماعت، بصارت اور عقل سے بہراور کیا، اس کے لیے حصول علم کے تمام اسباب آسان کیے، اسے قرآن کی تعلیم دی، حکمت سکھائی اور قلم کے ساتھ علم عطا کیا جس کے ذریعے سے تمام علوم کو محفوظ اور حقوق کو ضبط کیا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے ایسا ایلچی ہوتا ہے جو ان کے لیے
बिलमुशाफा खिताब का कायम मकाम होता है। अल्लाह ताला के हम्द व सना और उसका एहसान है जिसने अपने बंदों को उन नेमतों से नवाजा जिनकी वो जजा देने पर कादिर हैं, नाशुक्र अदा करने पर। बस अल्लाह ताला ने उन्हें तवंगरी और कशाइश से रिज़्क़ से नवाजा, मगर इंसान ने अपने जुल्म जहालत की बिना पर जब अपने आप को गनी देखा तो सरकशी और बगावत पर उतर आया, हिदायत के मुकाबले में तकब्बुर किया और भूल बैठा कि उसे अपने रब की तरफ लौटना है और जजा से न डरा, बल्कि इस हालत को पहुंच जाता है कि खुद भी हिदायत को छोड़ देता है और दूसरों को भी हिदायत छोड़ने की दावत देता है। बस वह नमाज पढ़ने से रोकता है जो अमाल ईमान में सबसे अफजल अमल है। अल्लाह ताला उस मुतकब्बिर और सरकश से फरमाता, आरायता, बंदा जब नमाज पढ़े उसको नमाज पढ़ने से रोकने वाले मुझे बता, इनका न भला नमाज पढ़ने वाला बंदा अलल हुदा, अगर हक़ का इल्म रखने वाला और उस पर अमल करने वाला हो, और अमरा या दूसरों को हुक्म देता है बित तक़वा, तक़वे का, क्या अच्छी बात है कि ऐसे शख्स को रोका जाए जिसका ये वस्फ़ है। क्या उसको रोकना अल्लाह ताला के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी और हक़ के ख़िलाफ़ जंग नहीं, क्योंकि नहीं का रुख सिर्फ़ उसी की तरफ होता है जो फ़ी नफ्सी ही हिदायत पर नहीं होता या वो दूसरों को तक़वा के ख़िलाफ़ हुक्म देता है। और आयता इनका दबा, भला बतलाओ हक़ से रोकने वाले ने अगर झुटलाया हो, व तवल्ला, और हुक्म से मुँह मोड़ा हो, क्या वह अल्लाह ताला और उसके अजाब से नहीं डरता। अलम या अलम भी अन्नल्लाह यरा, क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह उसे देखता है। जो अमल वो करता है और जो फ़ेल वो सर अंजाम देता है, अगर वह अपने हाल पर जमा रहा तो उसको वही सुनाई। पस फरमाया, कल्ला लइल्लम यंतही, जो कुछ वो कहता है और करता है अगर उससे बाज ना आया, ला नस्फ़अम बिन नासिया, तो हम उसकी पेशानी को बड़ी सख्ती से पकड़ेंगे और ये उसी का मुस्तहिक है, क्योंकि ये नासियतिन कादिबतिन खातिया, पेशानी अपने कौल में झूठी और अपने फ़ेल में ख़ताकार है। फल यदो, यानी ये शख्स जिस पर अजाब वाजिब हो चुका है, ना दिया अपने अहले मजलिस, अपने साथियों और अपने लोगों को बुला ले जो उसके इर्द गिर्द हैं, ताकि वो इस अजाब के ख़िलाफ़ उसकी मदद करें जो उस पर नाजिल हुआ है। सनद उस ज़बानिया, हम भी उसको पकड़ने और उसको सज़ा देने के लिए जहन्नम के दारों को बुला लेंगे, फिर वो देखेगा कि कौन सा फ़रीक़ ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा कुदरत वाला है। ये उस रोकने वाली हस्ती और उस उक़ूबत का हाल है जिसकी वईद सुनाई गई है। रहा उस शख्स का हाल जिसको रोका गया, तो उसको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस रोकने वाले की तरफ ध्यान ही ना दे और ना उसकी नहीं पर अमल ही करे। चुनांचे फरमाया, कल्ला ला तुतीहु, देख उसकी इताअत ना कर, यानी वो सिर्फ इसी चीज़ का हुक्म देता है जिसमें खसारा होता है। वस्जुद, और अपने रब के लिए सजदा कीजिए। वक़्तरिब, सजदों वग़ैरह और दीगर नेकियों और इबादत से अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल कीजिए, क्योंकि तमाम इबादत अल्लाह ताला और उसकी रज़ा के करीब करती हैं। ये हर उस शख्स के लिए आम है जो भलाई से रोकता है, और हर उस अमर के लिए आम है जिससे रोका गया है। अगरचे ये आयत अबू जहल के बारे में उस वक्त नाजिल हुई जब उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से रोका, आपको ताज़ीब दी और अज़ियत पहुँचाई। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शैतान मरदूद के शर से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बिलाशुबा हमने नाजिल किया इस कुरान को लैलतुल क़द्र में, और किस चीज़ ने खबर दी आपको क्या है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र बेहतर है 1000 महीनों से। नाजिल होते हैं फरिश्ते और रूह जिब्रील इस रात में अपने रब के हुक्म से हर काम लिए।
सलामती है वो रात यहाँ तक कि तुलू हो फज्र। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की फजीलत और उसकी बुलंद कदर व मंजिलत बयान करते हुए फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने उसे बाबरकत वाली रात में उतारा है। उसका शब कदर में नाजिल करना ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान के नाजिल करने की इब्तिदा रमज़ान मुबारक में और शब कदर में की। शब कदर के ज़रिए से अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर आम रहमत फरमाई। बंदे जिसका शुक्र अदा नहीं कर सकते, उसकी अजीम कदर मंजिलत और अल्लाह ताला के यहाँ उसकी फजीलत की बिना पर उसको लैलतुल क़द्र के नाम से मौसूम किया गया। नीज इसलिए भी उसको लैलतुल क़द्र कहा गया कि साल भर में जो कुछ वाक़ होता है, यानी उम्र, रिज़्क़, दीगर तकदीर वग़ैरह उसमें मुक़द्दर कर दी जाती है। फिर अल्लाह ताला ने उसकी अज़मत शान और अज़मत मिक़दार बयान की। चुनांचे फरमाया, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुझे किसने खबर दी कि शब क़द्र क्या है, यानी उसकी शान बहुत जलील और उसका रुतबा बहुत अजीम है। आपको उसका इल्म न है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ शहर, यानी क़द्र की रात फजीलत में 1000 महीने के बराबर है। वह अमल जो शब में वाक़ होता है 1000 महीने में जो शब क़द्र से खाली हो वाक़ होने वाले अमल से बेहतर है। ये उन उमूर में से है जिन पर गिर्द हैरान और अक़ल दंग रह जाती है कि अल्लाह ताला ने इस ज़ईफ़ुल क़वा उम्मत को ऐसी रात से नवाजा जिसके अंदर अमल 1000 महीनों के अमल से बढ़कर है। ये एक ऐसे मुअम्मर शख्स की उम्र के बराबर है जिसे 80 साल से ज़्यादा तवील उम्र दी गई हो। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा, यानी फ़रिश्ते और जिब्रील अमीन इस रात में कसरत से नाजिल होते हैं। मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया, हर काम लिए ये रात सलामती है, यानी शब क़द्र हर आफत और हर शर से सलामत और उसका सबब उसकी भलाई की कसरत है। हत्ता मतलअल फ़ज्र, सुबह के तुलू होने तक, यानी इस रात की इब्तिदा गुरूब आफ्ताब और उसकी इंतहा तुलू फ़ज्र है। इस रात की फजीलत में तवातुर से अहादीस वारिद हुई हैं। नीज़ ये कि शब क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे में है। आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर ताक़ रातों में वाक़ होती है और यह रात हर साल आती है और क़यामत तक बाकी रहेगी। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ बैठते थे और कसरत से इबादत करते थे, इस उम्मीद में कि शायद शब क़द्र मिल जाए। वल्लाहु आलम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।